everyone, कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू द चैनल. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट our division of economy through note series. Now this is the first lecture, so let's start with the nature of Indian economy. Now the Indian economy, as we all know, is a mixed economy. See, there are basically three type of economies. The first one being capitalist model, the second one being socialist, and the third one being mixed economy. The capitalist model of economy basically focus on profit making. Only those products in the markets are made which are higher in demand, so that they can be sold more and more profits out of them can be earned. The government has no control over what is needed to be produced in the economy. This is the basic feature of the capitalist economy. On the other hand, if I talk about the socialist model, so examples of socialist models are Russia, China, etc. In this model of economy, the government decides what to produce, and major activities that are needed to be performed in the economy, major production things are directly into the hands of government. So government works for the people, it has social motives. So this model is generally known as the socialistic model. On the other hand, if I talk about mixed economy, so it is a combination of capitalist plus socialist. It means both existence of public and private sector is there. So ये होता है basically Indian economy में. तो Indian economy is a type of mixed economy. I hope you have understood the concept. Now India is a labor surplus economy, as we all know, and agriculture is performed by nearly 71% of the population, although maximum contribution in GDP is of the service sector. ठीक है, ये आपको ध्यान रहेगा. सर्विस सेक्टर में इट इज़ रिलेटेड टू टूरिज्म, IT, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एज एन software services, etc. These are the constituents of service sector. Now the other concept is here about the underdeveloped economy. Now there are basically two types of economy, we can divide it. Developed है होता है, एक होता है underdeveloped, and there is the third, developing economies. So basic proponents which decide where a economy is developed, underdeveloped or developing is basically capital infrastructure. Basically it is about the per capita income, credit creation in the society. So these are all the proponents which decide whether an economy is developed, underdeveloped or developing. So underdeveloped economy मतलब क्या, डेवलपमेंट यहाँ पे ज़्यादा नहीं है. सो अभी जो मैंने टीनेंट्स बताया उन्हीं पे ये काम करेगा. फॉर एग्जांपल, लो पर कैपिटा इनकम, द पीपल आर अर्निंग लेस. सेकेंड इज लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन इज लो. तो इसकी वजह से क्या होगा, द डिमांड इन द इकोनॉमी वुड ऑल्सो बी लो. डिमांड लो होगा तो स्पेंड लोग नहीं करेंगे, तो प्रोडक्शन भी कम होगा क्योंकि डिमांड नहीं है. सो दिस इज़ अ विशियस साइकिल. ठीक है. नाउ हाई डिपेंडेंसी रेशियो, क्रेडिट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है. नाउ इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, it means that the division between rich people and poor people is very high. ठीक है. So these are some of the features of underdeveloped economy. So देखो, economy I will tell you slowly because it is a conceptual subject. I would need to first make you understand the concepts and उसके बाद I will give you the explanation. Now the topic is national income and GDP. एक या दो क्वेश्चन इधर से ज़रूर आते हैं, so you need to study this very carefully. Now what is national income? Basically national income is net national product, NNP at factor cost. अब इसके कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं. सी, नेशनल इनकम का सबसे पहला फार्मूला है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन. सी, व्हेनेवर यू सी कहीं पे ग्रॉस लिखा हो, तो व्हेन ग्रॉस से वी सब्सट्रैक्ट डेप्रिसिएशन, वी कम टू नेट. ठीक है. तो इसको जब हमने सॉर्ट आउट कर लिया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, तो वी गेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. देन वी विल सब्सट्रैक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस सच एज GST,
etc., VAT, etc., and then we will add subsidy. We will come to net national product, net national product at factor cost. सही देखो यही है यहाँ पे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. अभी बताया मैंने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन, तो ये हमारा बन गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. ठीक है, यहाँ पे वी हैव सब्सट्रैक्टेड इनडायरेक्ट टैक्स एंड देन सब्सिडी, तो हमारा आ गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ओके, सी नेशनल इनकम अभी बताया, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ये हमारा फाइनल फार्मूला है. व्हेन वी सब्सट्रैक्ट ग्रॉस फ्रॉम डेप्रिसिएशन वी गेट नेट नेशनल प्रोडक्ट at market price, then we have subtracted indirect tax and then we have added subsidy, तो हमारी आ गई national income. Now what are the key points? national income का मतलब क्या होता है? It is the money value of final goods and services that is produced. It is net national product at factor cost. We have seen it already. I hope you are understanding. नो ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स फार्मूलाज हैं. आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. अगर समझ में आ गया होगा तो डू मेंशन इन कमेंट सेक्शन में मुझे बताना. नहीं समझ में आया होगा तो वो भी बताना. नाउ NNP, GNP माइनस डेप्रिसिएशन. नाउ देयर इज़ अनदर फार्मूला फॉर फाइंडिंग द GNP, दैट इज GDP में व्हेन वी एड नेशनल नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड वी ऑल्सो गेट GNP एंड देन वी सब्सट्रैक्ट डेप्रिसिएशन, तो वो हमारा NNP तो आ ही गया. नाउ नेशनल इनकम का एक फॉर्मूला होता है विच इज C + I + G + X - M, जहाँ पे Y अमाउंट्स टू नेशनल इनकम, C अमाउंट्स टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, द कंजम्पशन बीइंग मेड बाय द सिटीजन्स, I amounts to the investment expenditure, G amounts to the government expenditure. So when we add consumption plus investment plus government expenditure and then we subtract it from the exports minus import, X यहाँ पे amounts to export and then import. जो इन दोनों को subtract exports में से imports को minus करने के बाद जो amount होता है we will add it to C + I + G and we will get Y, which is the national income. Now, GDP calculation basically is done by 3 methods. The first one is product method. अभी हमने देखा GDP is the main product, जहाँ से हम product method से निकालते हैं. Now, income method we have already seen national income का, and then the third is expenditure method. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अभी बताया मैंने, जैसे GNP का फैक्टर था बताया ना, ग्रॉस में से हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, देन वी विल गेट नेट. सेम कंसेप्ट इधर है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वी हैव सब्सट्रैक्टेड डेप्रिसिएशन, वी हैव कम टू नेट. नाउ व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम इज द नेशनल इनकम विच इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, सो वी डिराइव पर कैपिटा इनकम. नाउ नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज एन कंसेप्चुअल पार्ट कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDP is a better metric than GDP. Why? सबसे पहला तो यहाँ पे दिमाग आपका चलना चाहिए, नेट एंड ग्रॉस के बीच में डिफरेंस क्या है? डेप्रिसिएशन का. ठीक है, तो जब हमने डेप्रिसिएशन उस कंट्री की इंक्लूड की है, सो वो थोड़ा सा वोलेटाइल हो जाएगा. ठीक है, वो एक्यूरेट नहीं होगा. एंड व्हेन समथिंग इज एडजस्टेड फॉर लेट अस से डेप्रिसिएशन और इन्फ्लेशन. ठीक है, आगे हम ये भी कंसेप्ट इन्फ्लेशन वाला पढ़ेंगे. तो व्हेन समथिंग इज एडजस्टेड, ठीक है, तो इट इज़ एक्यूरेट, तभी तो एडजस्ट किया ना. अगर कोई चीज़ एक्यूरेट नहीं है उसमें वी हैव सब्सट्रैक्टेड दैट पार्ट विच इज़ कॉजिंग द वोटैलिटी इन दैट. फॉर एग्जाम्पल CPI, वाई इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज यूज्ड एज अ मेट्रिक फॉर मेजरिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया बाय RBI. बिकॉज WPI हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें वॉलेटाइल एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं सच एज सर्विसेज, विच इज़ इन केस ऑफ CPI नॉट इंक्लूडेड. तो टू फाइंड अ बेटर मेट्रिक वी हैव टू एडजस्ट इट. सो दैट इज़ वाई नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ अ बेटर मेट्रिक बिकॉज वी हैव डिडक्टेड डेप्रिसिएशन टू कंपेयर द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स. If a question is being asked in the examination, which of the following is a better metric to
कंपेयर द वर्ल्ड इकोनॉमीज एंड आपको ऑप्शन में वहाँ पे एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्सेट्रा दिया होगा. तो आई थिंक नाउ यू वुड बी एबल टू क्लियरली आंसर. नाउ जस्ट लाइक दैट अभी नेट और ग्रॉस का कंसेप्ट देखा. वी हैव रियल इनकम एंड दैट वी हैव नॉमिनल इनकम. रियल इनकम क्या होती है? रियल इनकम दैट इज इनकम विच इज़ एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन. तो जो हमारे पास है वो रियल है. नॉमिनल क्या है? द इनकम विच इज़ नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन. यही ये हम कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस पे देखेंगे. कांस्टेंट प्राइस हमारा इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन एंड करंट प्राइस इज नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन. तो आई होप कि ये जो बहुत वेग से वर्ड्स हैं जो कि बहुत लोगों को परेशान करते हैं, आई एम एबल टू मेक इट क्लियर. ओके, नाउ लेट्स proceed now. Real income remains unchanged even if the prices and the monetary income have been doubled. Why? Because real income is adjusted for inflation. तो उसको फर्क ही नहीं पड़ता भाई कि कितनी इन्फ्लेशन है. Okay. Now, next concept is about the Amartya Sen's model of economic growth. Now, Amartya Sen advocated for a people-oriented economy. Also, economic security to the poorest was one of the agendas of the Amartya Sen's model. तो ये ध्यान रखना, Amartya Sen's model is people oriented economy and economic security to the poorest people. Now if we talk about Hindu rate of growth, तो इसको आप मत समझना कि it is related to population. ठीक है, Hindu rate of growth is related to calculation and measurement of GDP. Now, economic growth is always coupled with inflation. What does this mean? It means that a certain amount of inflation is healthy for an economy. ठीक है, क्योंकि साइकिल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज देयर. कभी प्राइसेस बढ़ेंगे, डिमांड घटेगी, कभी डिमांड घटेंगे और डिमांड घटेगी एंड देन प्राइसेस उसके वापस से डिक्रीज होंगे. ये एक विशियस साइकिल है. सो अ हेल्दी अमाउंट ऑफ अ स्लाइट बिट ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी इज ऑलवेज नीडेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. दिस यू नीड टू नो. इन्फ्लेशन इज नॉट नेगेटिव टर्म. इन्फ्लेशन इज हेल्दी फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज, अदर देन कि हाइपर इन्फ्लेशन ना हो. डिफ्लेशन भी अगर ज़्यादा हो तो वी नीड नॉट वरी. लेकिन इफ़ अ इकोनॉमी गोज थ्रू रिसेशन then it is a bad for economy. Okay, now some of the terms which are used in the economic sense are meltdown. It is steep fall in the stock prices. Now if related to stock prices, you will have to know that the stocks in India are regulated by SEBI. SEBI is a statutory body which was formed in the year 1992. Okay, meltdown is the steep fall in the stock prices. Bull is also related to the stock prices. It is a situation when the prices of the stocks are made to rise or the market soars upwards, and bearish bear is when the market falls, the prices of the stock falls. So this bull, bear, etc., meltdown, these are the terms which are related to the stock prices in Indian economy. Now, what is recession? Recession is the massive contraction of the economic activities. ठीक है, अभी देखो, I'll tell you a thing. सबसे पहले तो हमने देखा इन्फ्लेशन, ठीक है, देन कम्स डिफ्लेशन. ठीक है, बस एक बार इसको सुन लेना, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड. देन देयर इज स्लो डाउन एंड देन लेवल आता है हमारा रिसेशन का. Now, what is inflation? Inflation is the general increase in the prices of goods and services. Deflation is also a general decrease. Decrease है but not much. ठीक है. स्लो डाउन क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में देयर इज ऑल ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मे इट बी प्राइमरी सेक्टर, मे इट बी सेकेंडरी और मे इट बी टर्शियरी सेक्टर, सारे सेक्टर्स में देयर इज सम अमाउंट ऑफ स्लो डाउन, विच द एग्जाम्पल ऑफ विच इज कोरोना, कोविड ऑफ 2020, जहाँ पे ऑल द सेक्टर्स एक्सेप्ट एग्रीकल्चर एडमिनिस्टर्ड ए नेगेटिव ग्रोथ. एंड देन रिसेशन इज अ हाई फॉर्म ऑफ डिफ्लेशन. मतलब क्या? इट इज़ द मैसिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट अमाउंट्स टू रिसेशन. एंड जब whenever an economy is in inflation,
or a deflation situation, it is somehow possible for that economy to recover from it. ठीक है, may it be a month or 2 or 3 or quarter or till next quarter, a economy can recover. But from recession, it is very difficult, and it takes a larger amount of time for an economy to recover from recession, because there is massive contraction of the economic activities. I hope that you are understanding the technical aspects of what I am trying you to explain. Okay, and please give your valuable feedbacks, because in this video I am not just telling you the notes that I have made, not just the explanation, I am just trying to explain you with the technical part also. So do mention in the comment section कि कैसा लगा आपको, and further videos आपको इसी वे में चाहिए, क्योंकि we will move slowly. But अगर कोई क्वेश्चन आता है related to these concepts, you will be able to handle them. I am sure about this. Okay, so do mention in the comment section if you are liking the way this way is good or the previous one is good. Okay, do mention in the comment section. Now let us now talk about the LPG policy. LPG policy came during the prime ministership of Shri Narasimha Rao. Okay, finance minister at that time was Dr. Manmohan Singh. It was the policy of liberalization, privatization and globalization. 1991 के रिफॉर्म्स तो आपको पता होंगे, बट डू यू नो व्हाट वाज द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड this 1991 policy? It was the crisis of foreign exchange reserves. India barely had a foreign exchange of for a day or two only. So India wanted loan from IMF on an emergency basis. So IMF told India to get a policy in which India will have to liberalize, privatize and globalize its economy and force open the Indian economy for the outer forces. मतलब outer countries, foreign countries के लिए इंडिया को open करना होगा, then only IMF will provide the loan. This was the basic idea behind the 1991 policy. That is why the economy was liberalized, privatized. Privatized means कि public sector control या the control of government was lessened in various sectors, and these sectors, around 13 sectors, were open widely for the private participation. And then there is globalization. What does globalization means? It means integration of world economy with the Indian economy. ठीक है, तो this was the 1991 policy by Dr. Manmohan Singh, which revived India from that crisis of foreign exchange. ठीक है, the LPG reform started with changes in the industrial licensing. Why? क्योंकि पहले industries was mainly handled by the public companies which were directly controlled by the government. Then industrial licensing में licenses were given to private sector also, and then LPG reform started. Now there are mainly two sectors in the economy. First one is real sector and then another one is financial sector. What is real sector? The sector that produces goods and services is real sector. For example, agriculture, manufacturing, construction and services. So real sector में हमारी primary activities आ गई, secondary activities आ गई and tertiary activities आ गई. ठीक है, and financial sector क्या है? The sector that deals with money and other financial assets. For example, commercial bank lending money, pension देना, insurance regulatory body, these all are related to the financial sector. ठीक है, corporate body issuing a rupee denominated bond, these all are financial sector. And real sector में क्या आएगा मेरा? Agriculture, manufacturing, construction, services, all the primary, secondary and tertiary activities comes under real sector. I hope this is clear. Now what are the signs of economic growth? I have already told you abhi the difference between developed, underdeveloped and developing. So what do you think कि अगर मान लो underdeveloped economy है and that needs to be developing, तभी तो economic growth मानी जाएगी. तो जो underdeveloped economy में होता है वही सारे factors, if they improve, then the economy can be said to walk on the path of economic growth. Let us see growth in the per capita income. Obviously पहले underdeveloped economy में क्या था?
कि द पर कैपिटा इनकम वॉज लो, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर would be strengthened, infrastructure would be built. These are the signs of economic growth. Now, per capita growth is the most appropriate measure of economic growth. Now, per capita income at constant price is adjusted for inflation. Obviously, अभी बताया मैंने, constant मतलब क्या? It is adjusted for inflation. Current prices मतलब क्या? Not adjusted for inflation. ठीक है। जीडीपी का भी तो हमने देखा, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो हमारे पास नेट आ गया। सो दिस इज़ द आइडिया, मैंने बता दिया आपको सारा। नाउ पर कैपिटा इनकम वॉज फर्स्ट टाइम असरटेन्ड बाय दादा भाई नौरोजी। ऑब्वियसली करेक्ट है बिल्कुल। एंड ऑल्सो दादा भाई नौरोजी wrote a book, Poverty and Un-British India, Un-British Rule in India, which talked about the home charges, which talked about the drain of wealth theory. And if another question is asked to you about the economic critiques in the British era, they would have been, first one will be Dada Bhai Naoroji, then will be R.C. Dutt. These two were the main proponents of the economic critique during the British rule. Now, who was the chairman of the National Income Committee of 1949? P.C. Mahalanobis. He is also known as the father of Statistical Commission. This you needed to know now. Now, first attempt to calculate the national income was made by Dada Bhai Naoroji. Secondly, first to determine national income scientifically was V.K. R.V. Rao. See, these both are very important points. You बस आप इसको notes में add कर लेना अपने. First attempt to calculate national income was by Dada Bhai Naoroji, and the second one, first to determine national income scientifically, was V.K. R.V. Rao. The term national income in India is ascertained by NSO, National Statistical Organization. It is made by merging CSO plus NSSO, National Sample Survey Organization, and Central Statistical Organization. This NSO has been made in India in the year 2019. So confuse मत होना, CSO NSSO में इन दोनों को merge करके NSO बना दिया गया है in the year 2019. I hope this is clear. Now, what is the base year in the national income accounting? So the year whose price are being used to calculate real GDP. Real GDP क्या है? Which is adjusted for inflation. And nominal GDP क्या है? Nominal मतलब it is not adjusted. ये तो आपको समझ आ गया होगा अच्छे से. I hope so. Now, what is the new base year of the GDP? So 2011-2012 has been made the new base year of the GDP. Now, when was there the highest growth rate of the Indian economy? So the highest growth rate was in the year 2006-2007. This is a static point which you need to remember. ये पूछा जा सकता है कि इंडियन इकोनॉमी ने हाईएस्ट ग्रोथ रेट कब अचीव किया था. Now, highest share in household savings is of physical assets. Physical assets like it is property, it is gold. तो हाउस होल्ड सेविंग में फिजिकल एसेट्स का सबसे ज़्यादा शेयर होता है. नाउ, नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सो इट इज़ नीति आयोग. नाउ हियर आई विल हैव टू टेल यू समथिंग अबाउट द नीति आयोग, एंड प्रायर टू दैट देयर वाज एन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया विच वाज प्लानिंग कमीशन. नाउ प्लानिंग कमीशन के बारे में पहले देख लेते हैं, सम बेसिक इन्फॉर्मेशन. So it was established in the year 1950, ठीक है, which tends to bring 5-year plans. 12 5-year plans were brought in India, ठीक है. This planning commission was not a constitutional body. It was made by an order of cabinet, order passed by the cabinet. So it was not a constitutional body. The recommendation which were given by the planning commission were advisory in nature. देन जब मॉडर्न इंडिया की ये नीड थी कि प्लानिंग कमीशन वॉज नॉट वर्किंग, सो नीति आयोग replaced planning commission in the year 2015 on January 1st, ठीक है, जिसके चेयरमैन नीति आयोग के इज पीएम मोदी. मतलब पीएम मोदी ही सिर्फ अब नहीं रहेंगे. इट मीन्स दैट कि
चेयरमैन इज ऑलवेज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ठीक है। नीति आयोग में देयर इज टारगेट टू अचीव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म for better understanding of, for better amalgamation of policies to bring India in the lines of growth. This is the main target of Niti Aayog. So Niti Aayog in India is responsible for implementing the sustainable development goals which are decided by United Nations. Now इस साल का नीति आयोग का इंडेक्स में बात करूँ तो टॉप मोस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स ऑफ द ईयर 2024 इज उत्तराखंड एंड देन देयर इज केरला. And if you are preparing for BPSC, then you need to know that lowest performance अगर किसी state की रही है तो that is of Bihar. So Bihar is among the least scored state in India in the Sustainable Development Index of 2024. Now, what is India rank in SDG Index Sustainable? It is released by SNDN. ठीक है. The India's rank of the year 2024 is 109th. द स्कोर, इफ स्कोर इज आस्क्ड तो 51 स्कोर इंडिया का है. अगर मैं बिहार की बात करूं, बिहार का स्कोर ओनली 57 है. इसकी वजह से बिहार इज इन द लोएस्ट लेवल. नाउ नेक्स्ट इज जेनेटिक इंडस्ट्री इंक्लूड्स एग्रीकल्चर. नेक्स्ट इज चौधरी चरण सिंह वॉज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग. अब कोऑपरेटिव फार्मिंग मतलब क्या? कोऑपरेटिव is basically an idea in which a group of people or a group of organizations just combine themselves for collective benefit. And for the promotion of this cooperative, Ministry of Cooperation has also been launched in India. This is a new ministry which has been launched, and it is recently headed by the Home Minister of India, who is Amit Shah. So this you need to know about cooperative farming. Abhi Chaudhary Charan Singh has also been given Bharat Ratna. तो you need to know about this also. ओके, इनके साथ साथ LK आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, इनको भी भारत रत्न दिया गया है. नाउ टीनेंसी रिफॉर्म्स में क्या मेन एम था? इट एम टू रेगुलेट द रेंट. Second one, security of tenure is to be ensured, and third is conferment of ownership right of the tenants were to be given. Now, land holdings का size आपको याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि these points I have collected from the previous year questions. So, marginal land is a land which is below 1 hectare. If I talk about small, then is 1 to 2 hectare. Semi-medium is 2 to 4. Medium is 4 to 10, and large is above 10. So let us arrange this in a chronological order. सबसे कम तो marginal होता है, then we have small, then marginal, then we have small, then we have semi-medium, then we have medium, then we have large. Anything above 10 hectare is large and marginal is below 1 hectare. ठीक है. I think this land holdings वाला part is clear to you. Now बिहार की land holding की बात करूँ, this is specifically for the purpose of BPSC 70th examination. So it is second lowest after Kerala. That is 0.39 per hectare is the land holdings. मतलब बिहार के पास there is small land holding and it ranks second in the country with an average holding of 0.39 hectare. Now if I talk about black soil, so black soil is appropriate for growing cotton. Black soil is also known as रेगुड़ soil. I know कि बहुत ज़्यादा कंटेंट होगा बट इकोनॉमी करने का फ़ायदा ऐसे ही है, वरना तो कितनी भी वीडियोस देखो कोई फ़ायदा है नहीं. सो आई हैव स्टडीड एंड आई हैव जस्ट कल्मिनेटेड ऑल दिस पॉइंट्स. सो आई होप दिस विल हेल्प यू. सो ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगुड़ सॉइल. इट हैज़ हाई मॉइस्चर का रिटेंशन. ठीक है. कॉटन इज बेस्ट ग्रोड ऑन दिस सॉइल. Also it is rich in alumina, iron, etc. And the humus content and nitrogen content is very low. Also phosphorus जो है is on the lower side in the black soil. It is predominantly found in the states such as Gujarat, Maharashtra, parts of Karnataka, etc.
So this is all about the black soil. Now, price stabilization fund, it was established by the government of India in the year 2014 and 15. The price stabilization fund was mainly found for potato, onion and pulses. Now, here comes NABARD. NABARD की establishment कब हुई? In the year 1982. Self-help group bank linkage program started in the year 1992 to 1993. It was led by the RBI. Second, RRBs were formed in the year 1975. Kisan Credit Card Scheme came up in 1998. Also, nationalization of banks happened in the year 1969. इसके पहले आई ऑलरेडी टोल्ड यू राज्यसभा, ये नोट कर लेना, 1952 में इस्टेब्लिश हुआ था, विच इज़ अ नॉन डिजॉल्विंग हाउस ऑफ विच 1/3 ऑफ मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर. ओके. प्लानिंग कमीशन आई ऑलरेडी टोल्ड यू 1950. कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ये स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1952 में. ठीक है. SBI बैंक वॉज मेड इन द ईयर 1955. General Insurance Act which is related to insurance 1972 में पास हुआ था. So these are some of the acts which you and dates which you need to know. Now next video से हम कर लेंगे आगे. Okay, next video से we will proceed आगे के पार्ट को, क्योंकि 30 मिनट की वीडियो हो गई है. If you are guys watching video from start to end, आप बताओ अगर आपको लंबी वीडियोस चाहिए तो आई विल मेक वीडियो अराउंड 45 मिनट्स टू 55 मिनट्स के बीच. तो यू कैन टेल मी अकॉर्डिंगली, अदरवाइज हाफ एन आवर की वीडियो रखते हैं. ठीक है. टिल देन कीप स्टडिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू द चैनल. सो ये हमारी सेकेंड वीडियो होने वाली है ऑफ द इकोनॉमी डिवीजन थ्रू नोट सीरीज. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी एंड रेवेन्यू, एंड देन वी विल प्रोसीड. आई विल ऑल्सो गिव यू द एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अबाउट द कंसेप्चुअल पॉइंट्स इन द इकोनॉमी सेक्शन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई टॉक अबाउट द फिजिकल एंड रेवेन्यू पॉलिसी, तो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ पॉलिसी दैट रन्स इन द इंडियन इकोनॉमी. सबसे पहले तो होती है मॉनिटरी पॉलिसी. एक ब्रीफ बैकग्राउंड दे रहा हूँ आपको ताकि जल्दी से समझ में आ जाए कि आगे हम क्या बात करने वाले हैं. First is the monetary policy and second one is the fiscal policy. फिर monetary policy को हैंडल कौन करता है? It is handled by the RBI. RBI में भी there is a monetary policy committee, ठीक है, MPC, which is a 6-member committee and this is very important. इसको आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस आ सकते हैं. MPC is a 6-member committee and the chairman of this MPC is the governor of RBI. And recently the governor of RBI is Shashikant Das. Okay, ये monetary policy में there are 2 types of things. सबसे पहले तो quantitative policy होती है. अब quantitative policy में क्या होता है? There are different type of rates such as cash reserve ratio, statutory liquidity ratio, repo rate, reverse repo, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. And then देयर इज़ क्वालिटेटिव में क्या काम होता है कि मोरल सुएशन, RBI डायरेक्शन देता है डिफरेंट बैंक्स को. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी. अब फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है? द पॉलिसी विच इज़ रिलेटेड टू टैक्स एंड रेवेन्यू is called fiscal policy and this fiscal policy is carried by the central government of India. So basically ये 2 टाइप की पॉलिसीज़ होती हैं. आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. Now let us proceed to our points. बीच में I'll give you the inputs and the explanation part and I hope कि this is going to help you. Now gender budgeting का मतलब क्या है कि the budget will be based on gender. जैसे वुमेंस हैं तो वुमेंस रिलेटेड स्कीम के लिए एक फंडामेंटल, एक बेसिक सम अलाउ किया जाएगा. So this type of policy in which the funds are allocated on the basis of gender, this is called gender budgeting. It was firstly started in the Union Budget of 2005-2006. Now most important thing अभी is GST. What is GST? सबसे पहले तो GST हमें ये जानना है कि it is a indirect tax which is destination based tax. Okay. सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि ये एक टास्क फोर्स बनी थी
विच वॉज प्रिसाइडेड बाय विजय केलकर, ओके, उन्होंने प्रपोज किया था जीएसटी। अब इफ़ आई टॉक अबाउट जीएसटी, तो 101st अमेंडमेंट एक्ट के बाद जीएसटी आया, सबसे पहली पॉइंट तो ये। सेकंड है जीएसटी में देयर इज़ अ जीएसटी काउंसिल, ठीक है, एंड जीएसटी काउंसिल इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एंड आर्टिकल की मैं बात करूँ तो आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस अबाउट द जीएसटी काउंसिल। ये जीएसटी काउंसिल इज़ हेडेड, द चेयरमैन ऑफ विच इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अभी निर्मला सीतारमन जी हैं। एंड जीएसटी काउंसिल में इनके अलावा डिफरेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स, फाइनेंस मिनिस्टर एट्सेट्रा, इन सब की ये काउंसिल होती है। अब ये जीएसटी काउंसिल का काम क्या होता है कि इट इज़ देयर टू डिसाइड द टैक्स रेट, डिसाइड द टैक्स रेट्स इन द कंट्री, जो कि प्रेजेंटली अभी 5%, 18%, 28% एट्सेट्रा इस ब्रैकेट में, 9% इस ब्रैकेट में टैक्स डिवाइड होते हैं। नाउ जब ये जीएसटी आया तो ये इसको अम्ब्रेला टैक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा अम्ब्रेला है जिसके अंदर में डिफरेंट टाइप ऑफ जो छोटे छोटे इनडायरेक्ट टैक्स थे वो आ गए, जैसे कि सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, वैट एट्सेट्रा, ये सारा कुछ इंक्लूड कर दिया गया जीएसटी में। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे जानने वाली ये है कि देयर आर सम ऑफ द टैक्सेस विच आर नॉट इंक्लूडेड अभी तक जीएसटी में। सबसे पहला तो है द वैट ऑन पेट्रोल, ये इंक्लूड नहीं किया गया है। डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स पे जो टैक्स लगता है वो इस पे इंक्लूड नहीं किया गया है। थर्ड इज़ लिकर पे नहीं लगता है, पेट्रोलियम लिकर पे भी नहीं लगता है, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द प्रोडक्ट्स। एक अगर मैं और बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी पे भी जीएसटी नहीं लगता है। आई होप कि ये जीएसटी वाला पार्ट इज़ क्लियर। एंड फर्स्ट कंट्री टू प्रपोज जीएसटी वाज फ्रांस, ये तो आपको पता होना चाहिए। नाउ कस्टम ड्यूटीज इज़ नॉट इंक्लूडेड इन जीएसटी, एल्कोहल फॉर कंजम्पशन इज़ ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड, पेट्रोलियम भी इंक्लूड नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होता है, और एक मैंने हाइड्रोकार्बन बताया था, hydrocarbons, the tax on hydrocarbons is also not included in the GST. Now, fiscal policy, in the explanation part only I have already explained you monetary policy and fiscal policy. So this fiscal policy is formulated by the Ministry of Finance, which prepares the economic survey, okay. And budget जब भी पेश होता है, whenever the budget is presented prior to 1 day before, this economic survey is tabled by the chief economic advisor of the country. Long-term fiscal policy, this was announced by VP Singh. Budget is a tool of fiscal policy. अब हाउ कैसे, अभी देखो, अभी आई एम गोइंग टू टेल यू अ सिंपल बेसिक थिंग, ठीक है। मैं जूम कर देता हूँ इसको ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। एंड आई विल चेंज दी कलर ऑफ माई पेन ऑल्सो, ओके। नाउ सी, अब ये मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी कैसे कंट्रोल करती हैं हमारी इकोनॉमी को। अब फिस्कल पॉलिसी हमने देखा टैक्स रेट्स वगैरह से रिलेटेड है, जो कि गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है। फॉर इंस्टेंस, ये मान लो कि मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा है। इन्फ्लेशन का क्या मतलब है, महंगाई ज़्यादा है, द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर ऑन दी हायर साइड। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगी, ओके। देन गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस बढ़ा देगी। अभी जब टैक्सेस गवर्नमेंट बढ़ाएगी तो जो पीपल के पास पैसा है, फॉर एन इंस्टेंस मान लो अ पर्सन हैज़ 100 रुपीज़, पहले ही यूज टू पे टैक्स ऑफ ₹10, नाउ द गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज डबल द टैक्स। नाउ अब उसको 20 रुपीज़ इन टैक्सेशन देने पड़ रहे हैं। पहले ही हैड 100 रुपीज़ एंड 10 रुपये उसके टैक्सेशन में गए, तो एक्सपेंडिचर करने के लिए उसके पास कितने पैसे बचे, 90 रुपीज़। एंड नाउ व्हेन द टैक्स रेट हैज़ बीन डबल्ड, तो उसके पास कितने पैसे बचेंगे, 80 रुपीज़। ऑब्वियसली जब उसके पास 80 रुपीज़ बचेंगे तो ही विल हैव लेसर मनी टू स्पेंड। जब वो स्पेंड कम करेगा तो वो खरीदेगा कम, कंजप्शन कम होगा। एंड जैसे ही कंजम्पशन कम होगा तो डिमांड फॉर दैट गुड विल ऑटोमेटिकली डिक्लाइन।
और जब डिमांड डिक्लाइन करेगी तो उसका प्राइस भी डिक्लाइन करेगा. सो वेरियस प्रोपोनेंट्स दैट आर यूज इन द फिजिकल पॉलिसी ये ऐसे ही रिवॉल्व करते हैं अराउंड वन अनदर. आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू नाउ. अब अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी की बात करूं तो मॉनेटरी पॉलिसी देयर इज कैश रिजर्व रेशियो. नाउ व्हाट डज दिस रेशियो टेल्स अस? दिस रेशियो टेल्स अस दैट द अमाउंट दैट द कमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप विथ आरबीआई. ठीक है, क्यों? क्योंकि एक ही साथ सारा वो बैंक के पास जो पैसा है वो लेंडिंग पर्पस के लिए बैंक ना यूज़ करे. क्यों? क्योंकि ऐसा टाइम आ सकता है व्हेन द पीपल जिन्होंने अपना पैसा बैंक में जमा कराया है वो जा सकते हैं बैंक के पास पैसा निकालने के लिए. तो वो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी शुड बी देयर बाय द कमर्शियल बैंक्स विद द आरबीआई, सो दैट व्हेनेवर देयर इज़ अ सिचुएशन ऑफ बैंक रन या पीपल गो टू बैंक टू विड्रॉ मनी तो उनको वो पैसा मिले. तो जब ही मान लो इन्फ्लेशन का टाइम होगा, महंगाई ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली आरबीआई ये चाहेगा कि लोगों के पास कम पैसा हो, तो सीआरआर को वो इंक्रीज़ करेगा. ठीक है, सीआरआर को इंक्रीज़ करने पे क्या होगा कि ज़्यादा पैसा कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा. ठीक है, द मोर अमाउंट ऑफ मनी विल बी डिपॉजिटेड बाय द कमर्शियल बैंक इन द आरबीआई. तो कमर्शियल बैंक विल बी लेफ्ट विथ लेसर मनी. अब कमर्शियल बैंक के पास लेसर मनी है तो दे विल लेंड लेस. ठीक है, वो कम पैसा पब्लिक को देंगे आगे, तो ऑटोमेटिकली कंजम्पशन डिक्लाइन हो जाएगा. सो दिस इज अ विशियस साइकिल बाय विच मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी बोथ ऑफ दिस डिटरमाइन द इकोनॉमिक साइकिल इन द कंट्री. आई होप कि दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू. कमेंट सेक्शन में मुझे बताना अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया तो. हाउएवर आई एम प्लानिंग कि एक इकोनॉमी पे परफेक्ट मैं बहुत अच्छे से आफ्टर 15 और 20 डेज आई विल स्टार्ट अ फुल फ्लेज कोर्स ऑन इकोनॉमी, बिल्कुल फ्री. ये यूट्यूब चैनल पे ही हमारे मिलेगा आपको. तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, और ये कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि लिमिटेड टाइम में आई एक्सप्लेन टू यू मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट. ठीक है, तो आई होप कि ये समझ आ गया होगा. बहुत लेमन लैंग्वेज में, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है बट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू इन लेमन लैंग्वेज. ओके, सो डू मेंशन इन द कमेंट्स आपको समझ आया या नहीं आया. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. बजट इज़ अ टूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी हमने देख लिया. मॉनेटरी पॉलिसी का भी हमने देख लिया, हाउ इट इफेक्ट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द जीरो बेस्ड बजटिंग. नाउ इट इज़ अ मेथड इन विच ऑल एक्सपेंसेस मस्ट बी जस्टिफाइड फॉर ईच न्यू प्रोजेक्ट ईच न्यू पीरियड. मतलब ऐसा नहीं है कि यू आर एलोकेटिंग मनी इनडिस्क्रिमिनेटली. ठीक है, जीरो बेस्ड बजटिंग में क्या होगा, हर न्यू पीरियड के लिए सारे एक्सपेंस को जस्टिफाई करना पड़ेगा एंड देन इट वुड बी इंट्रोड्यूस्ड. नाउ जीरो बेस्ड बजटिंग ये हमारे इंडिया में भी होती है एंड इट वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. नाउ revenue neutral rate is a concept which is related to GST. Also e-way bills etc. These concepts are also related to GST. GST में भी there is basically 3 type of tax. एक तो होता है SGST, State Goods and Service Tax. Then comes the Union Goods and Service Tax and then is Integrated Goods and Service Tax. State वाला जो पैसा है वो डायरेक्टली इट गोज़ टू द स्टेट गवर्नमेंट. यूनियन वाला डायरेक्टली गोज़ टू यूनियन एंड इंटीग्रेटेड वाला गोज़ टू स्टेट एज वेल एज यूनियन. ओके, ये इतना ही समझो अभी, ज़्यादा इस पर वी डोंट हैव टू जस्ट पॉन्डर अराउंड दीज पॉइंट्स, क्योंकि अभी डिवीजन इज इंपॉर्टेंट रैदर देन एक्सप्लेनेशन. नाउ फिजिकल पॉलिसी वी हैव सीन इट इज़ डिटरमाइंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एटसेट्रा दीज आर रिलेटेड. Budget is prepared by the Department of Economic Affairs which comes under Ministry of Finance. दूसरा कंफ्यूजिंग पॉइंट आपको ये आ सकता है कि बजट इज़ प्रिपेयर्ड बाय whom. ऑप्शन में तो एक रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स विच इज़ राइट. सेकेंड डेफिनेटली ये ऑप्शन रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. ओके, सो रेवेन्यू बजट प्रिपेयर नहीं करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स प्रिपेयर्स द बजट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट. नाउ this revenue account of the government and revenue account of the government में क्या क्या इंक्लूड होता है. सी देयर आर 2 टाइप्स. सबसे पहले तो रेवेन्यू अकाउंट होता है. रेवेन्यू अकाउंट में देयर इज रिसीट्स
एंड देयर इज एक्सपेंडिचर पार्ट। ठीक है, अब ये भी थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, तो सुन लेना इसको एक बार, आपको बेनिफिट होगा। रिसिप्ट्स में भी देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स रिसीट एंड नॉन टैक्स रिसीट। अभी टैक्स रिसीट तो हमने देखा ना, दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक तो हमारा इनकम टैक्स हो गया, कॉरपोरेशन टैक्स हो गया, दूसरा जीएसटी एटसेट्रा, दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स। अब नॉन टैक्स रिसीप्ट में क्या होता है, वहीं यहाँ पे दिया गया है इंटरेस्ट रिसीट, जो इंटरेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दिया है और उसका इंटरेस्ट वापस मिला है, दैट इज गोज इनटू द रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। टैक्स रिसीट अभी बताया मैंने, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स एटसेट्रा, दीज ऑल आर इन द रिसीट पार्ट ऑफ द रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर क्या आता है, तो जो भी सब्सिडी हम देते हैं, विच एवर डिफेंस एक्सपेंडिचर वी मेड, administrative expenditure etc, these all goes to the revenue expenditure. Okay, and whatever interest is paid on previous loan, this also goes to the revenue expenditure. Okay, I hope this is completely understood to you. Now small savings account, ये जाता है डेट रिसीप्ट में भी। अभी डेट रिसीप्ट में भी दो टाइप ऑफ रिसीट होती हैं अंडर कैपिटल अकाउंट। अभी एक होती है डेट रिसीप्ट, एक होती है नॉन डेट। नॉन डेट में जो डिसइन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट, एंड डिसइन्वेस्टमेंट से जो अमाउंट आता है, दैट गोज इनटू द नॉन डेट। एंड डेट मतलब इट क्रिएट्स अ लायबिलिटी ऑन यू। डेट का मतलब क्या होता है, डेट मीन्स कि अ लायबिलिटी, अ सर्टेन लायबिलिटी इज क्रिएटेड। तो स्मॉल सेविंग अकाउंट में अगर आप पैसा डाल रहे हो तो यू आर गिविंग द इंडियन गवर्नमेंट मनी। So at a certain point of time, whenever your amount is getting the amount that is in your small saving bank account is going to get matured, and then on the date of maturity the government has to pay the money to the people who have deposited it. So this small saving is a liability, and this liability on in hand creates debt. तो ये डेट क्रिएट हो गया। अब डेट कहाँ कहाँ से, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, इंटरनल बोरोइंग्स जितनी भी करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दीज ऑल गोज इनटू दी डेट रिसीप्ट। नॉन डेट मतलब क्या, लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, तो डिसइन्वेस्टमेंट किया गवर्नमेंट ने, डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा आया इट गोज टू नॉन डेट अकाउंट। इट इज़ क्लियरली डेट का कंसेप्ट समझ गए आप, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डेट रिसीट्स एंड नॉन डेट रिसीट्स। ओके, ऑल्सो डेट रिसीट में, नॉन डेट में क्या आ सकता है, एक तो मैंने डिसइन्वेस्टमेंट बता दिया आपको, ठीक है। सेकंड क्या आ सकता है, जो भी गवर्नमेंट ने पैसा दिया था स्टेट्स को या फिर किसी फॉरेन कंट्री को, वो पैसा वापस आ गए, दैट इज़ ऑल्सो नॉन डेट, क्योंकि अपना ही पैसा अपने को वापस मिला है, तो उसमें काय का डेट, नॉन डेट ही हुआ ना। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। नाउ रेलवे बजट वॉज मर्ज्ड विद द जनरल बजट इन द ईयर 2017। ठीक है, ये आपको याद रखना है, द रेलवे बजट वॉज मर्ज्ड विद द जनरल बजट इन 2017। नाउ व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ बजट। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब क्या, कि रेवेन्यू रिसीट इज लेस देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा हो रहा है इनकम से, रिसीट से, तो रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। ठीक है, तो उस जब भी रेवेन्यू डेफिसिट होगा, तो जैसे रेवेन्यू डेफिसिट होगा कभी भी, मतलब कि हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है एंड हमारी जो रिसीट या इनकम है रेवेन्यू अकाउंट की वो कम है, तो हम क्या करेंगे, विच एवर एक्सपेंडिचर वी आर मेकिंग, अभी जो मैंने बताया था, वी आर गिविंग सब्सिडी, वी आर डूइंग ग्रेटर अमाउंट ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर, और वी आर मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर जितना भी है हम कम कर देंगे। वी विल रिड्यूस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वी विल रैशनलाइज सब्सिडीज, वी विल डिक्रीज द सब्सिडीज। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा एक्सपेंडिचर कम होगा, तो जो ये रेवेन्यू डेफिसिट है दैट विल बी रिकवर्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट। आई होप कि दीज पॉइंट्स आर क्लियर नाउ। नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, it is an expenditure which does not create assets. Okay, for example salaries and allowance, pension, subsidy, interest payments etc, these all are revenue expenditure. ये concept I have already told you अभी। Now next comes the various type of deficit.
नाउ व्हाट इज बजट डेफिसिट, मतलब टोटल बजट में टोटल एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा है, द टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन द टोटल रिसीट, देन देयर इज बजटरी डेफिसिट. अब फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? इट इज़ एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट माइनस बोरोइंग्स. दिस इज द फिजिकल डेफिसिट. देन कम्स द प्राइमरी डेफिसिट. प्राइमरी डेफिसिट में क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड और कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पॉइंट. Fiscal deficit, so whenever we subtract interest payment we get the primary deficit. Now what is effective revenue deficit? अभी ये revenue deficit में हम grants जो देते हैं states को for creation of capital asset, तो these are long term loans that we are giving. So इसको हम subtract कर देते हैं revenue deficit से, तो we have effective revenue deficit which is adjusted for these grants that were given for the creation of capital assets. And this was firstly introduced in the year 2011-12 under the finance minister P. Chidambaram. Okay. Now, larger part of fiscal deficit is filled by borrowings. अभी ये fiscal deficit I have already told you, when the expenditure is on the higher side, revenue हमारा कम है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले फिजिकल डेफिसिट अगर होगा तो हम कंसोलिडेट करेंगे पैसा. Easiest way of consolidation is printing money, printing new money. बट ये प्रिंटिंग न्यू मनी का क्या लॉस है कि एक का एक अगर हमने ज़्यादा पैसा मार्केट में इंट्रोड्यूस किया तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा. सो दिस मेथड ऑफ प्रिंटिंग न्यू मनी इज़ हाईली इन्फ्लेशनरी. ओके, सो ये जल्द प्रिवेंट किया जाता है. अनलेस अनटिल इट इज़ वेरी नेसेसरी टू डू दिस, द मनी इज़ नॉट प्रिंटेड. ओके. Second one is ECB, ICB. ECB मतलब external commercial borrowing. We will borrow money from the foreign state, foreign nations, or through various foreign sources. Internal commercial borrowing, most of the money is borrowed internally, मतलब इंडिया से. मार्केट से हम पैसा उठाएंगे थ्रू सोवरेन बॉन्ड्स, थ्रू ट्रेजरी बिल्स, ये भी मैं बताऊंगा आपको. ठीक है. सो इंटरनल डोमेस्टिक बोरोइंग्स, इंटरनल कमर्शियल बोरोइंग्स को ही बोलते हैं. सो इफ व्हेनेवर क्वेश्चन इज आस्क्ड, लार्जर पार्ट ऑफ फिजिकल डेफिसिट इज फिल्ड बाय द डोमेस्टिक बोरोइंग. नाउ मोस्ट इन्फ्लेशनरी अभी बता दिया मैंने, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, प्रिंटिंग न्यू मनी हैज़ द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इफेक्ट. नाउ कट मोशन इज रिलेटेड टू बजट. अभी देखो यहाँ पे एक अभी मैं बता देता हूँ. कट मोशन इज रिलेटेड टू बजट, वेयर एज नो कॉन्फिडेंस, सॉरी फॉर द मिस्टेक, नो कॉन्फिडेंस मोशन इज रिलेटेड टू लोकसभा. ओके, एंड दिस मोशन वेन एवर इट इज पास्ड, ठीक है, अगर ये पास हो जाता है तो द गवर्नमेंट विच इज इन कंट्रोल या गवर्नमेंट विच इज ऑपरेटिंग इन द कंट्री हैज़ टू रिजाइन. ठीक है. तो नो कॉन्फिडेंस मोशन इज रिलेटेड टू द पॉलिटिकल एस्पेक्ट एंड दिस कट मोशन इज रिलेटेड टू बजट. अब कट मोशन में भी देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कट मोशन. लेट अस से इट. पॉलिसी कट मोशन में क्या होता है? द डिमांड इज टू बी रिड्यूस टू ₹1. ठीक है. पॉलिसी कट में ₹1 तक डिमांड किसी भी अगर कोई भी रिकमेंड करता है कि पैसा यहाँ पे इतना लगना चाहिए, इससे कि कोई बोले कि ₹100 लगना चाहिए. ठीक है. तो उसकी डिमांड को घटा के बोला जाता है कि डिमांड इज टू बी रिड्यूस टू ₹1. इकोनॉमिक कट में ₹1 क्लासिफाइड नहीं होता है, बट इट इज़ स्पेसिफाइड अमाउंट. जो भी अमाउंट उस मोशन में पास किया गया है वो इकोनॉमिक कट में होता है. थर्ड इज टोकन कट. टोकन कट में स्ट्रेट अवे द डिमांड इज रिड्यूस बाई 100 और मल्टीपल्स ऑफ 100. नाउ देयर इज अ कंसेप्ट नोन एज वोट ऑन अकाउंट. अभी वी नो दैट जनरल इलेक्शंस इन इंडिया आर हैपन्स एवरी 5 years. तो जो लास्ट ईयर होता है इन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट इज देयर, सो इन ऑर्डर टू, ये कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से ये चीज़ होती है कि द गवर्नमेंट विच इज़ देयर इन द कंट्री इज़ नॉट अलाउड टू मेक न्यू स्कीम्स. क्योंकि 4 साल गवर्नमेंट ने काम किया, आखिरी फाइनल साल में गवर्नमेंट ये चाहे तो ऐसी स्कीम्स ला सकती है कि वो बिल्कुल इलेक्शंस को अफेक्ट कर जाएंगी. वो बिल्कुल ही सब कुछ फ्री कर सकती हैं या बिल्कुल ही टैक्सेशन को रिड्यूस कर सकती है, सो दैट दे गेट एडवांटेज इन द इलेक्शन. सो दैट इज़ नॉट अलाउड.
okay, but a certain amount of money is needed to be spent in order to run the country जब तक नई elections ना हो जाए and the new government does not comes to replace the older government. Okay, so some amount of money is needed to work. So this vote on account is related to that only, कि short term expenditure from the consolidated fund of India and it is taken by the caretaker government. caretaker मतलब कि न्यू इलेक्शन से पहले जो ओल्डर गवर्नमेंट है वो कुछ पैसा विड्रॉ करती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, एंड दिस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज मेंशन इन आर्टिकल 266 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 267 आर्टिकल इज रिलेटेड टू द कंटीजेंसी फंड. ठीक है, एंड ये कंटीजेंसी फंड इज अंडर प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री. प्रेसिडेंट इशूज मनी फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड. प्रेसिडेंट में भी डायरेक्टली प्रेसिडेंट के अंदर नहीं होता है, बट प्रेसिडेंट के अंदर देयर इज एन ऑफिशियल नोन एज फाइनेंस सेक्रेटरी. This fund is under finance secretary. Okay, contingency fund. And consolidated fund of India is under the control of the parliament. पार्लियामेंट के भी कंट्रोल में ज़्यादातर कंट्रोल लोकसभा का होता है. राज्यसभा कैन डिस्कस द बजट, बट राज्यसभा हैज़ नो राइट टू वोट ऑन एनीथिंग रिलेटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. दिस इज़ रिलेटेड टू द पॉलिटी पार्ट. अब पॉलिटी हमने स्टार्ट नहीं किया ड्यू टू लैक ऑफ टाइम. एक तो मटेरियल बनाना होता है एंड देन आई हैव टू जस्ट रिकॉर्ड इट. मटेरियल पहले तो बहुत शॉर्ट और एफिशिएंट, सो पॉलिटी में नहीं करवा पाया, बट इफ़ यूल से आई विल स्टार्ट द पॉलिटी ऑल्सो. लक्ष्मीकांत को बेस करके बिल्कुल शुरू से लेके लास्ट तक करेंगे. इफ़ यू गाइज वांट टू सी दैट वीडियो तो आप बताना, वी विल स्टार्ट अ कोर्स ऑन पॉलिटी ऑल्सो. ये सारा कुछ हमारे यूट्यूब पे होगा. नाउ दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बजट से बताऊं तो ये चीज़ ध्यान रखना, द वर्ड बजट इज़ नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, द वर्ड बजट इज़ नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सेकेंडली इफ़ आई टेल यू, तो बजट की जगह पे कौन सा वर्ड है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एंड दिस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ मेंशन इन आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. चलो, अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई है, आपके एग्जाम्स है तो कुछ आर्टिकल रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे पॉलिटी के, देखते हैं आपके कितने सही होते हैं. कुछ आर्टिकल्स मैं बताता हूँ आपको, कुछ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जो मैं पूछूंगा. सबसे पहले मुझे बताओ आर्टिकल 45 क्या है. देन मैं बताता हूँ आपको आर्टिकल 108 हमारा जॉइंट सिटिंग है. ठीक है. देन थर्ड अगर मैं बात करूँ, आर्टिकल 105 इज रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, इम्यूनिटी दैट इज गिवन टू दी एमपीज. आपको मुझे बताना है कि द इम्यूनिटी टू द मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर इज मेंशनड इन विच आर्टिकल. ऑल्सो यू हैव टू टेल मी दैट, चलो ये मैं ही बता देता हूँ, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको, प्रेसिडेंट को, दे हैव टू टेक द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज हेडेड बाय द Prime Minister is there to aid and advise the President. This is mentioned in Article 74 of the Constitution. You have to tell me about the writs. writs कौन से आर्टिकल में mentioned है? सुप्रीम कोर्ट के एंड हाई कोर्ट के. ओके, सो चलो 45 सेकेंड्स में कुछ आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने रिवाइज कर लिए. नाउ लेट्स मूव नाउ हमारा टॉपिक फर्दर. FRBM एक्ट, ठीक है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट मैनेजमेंट. 3 स्टेटमेंट हमें प्रोड्यूस करने पड़ते हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड दिस इज़ रिलेटेड टू द फाइनेंशियल डिसिप्लिन. फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी क्या, कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फिजिकल डेफिसिट जो है इट शुड नॉट मतलब एक्सीड, ठीक है, अ सर्टेन अमाउंट. ओके, कुछ कंडीशंस भी दी हुई हैं कि देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस व्हेन द फिजिकल डेफिसिट कैन मतलब इंक्रीज, मतलब फिजिकल डेफिसिट उस पॉइंट के आगे जा सकता है. इट इज़ अकाउंट ऑफ वॉर, एग्रीकल्चर, जब इनकम कोलैप्स हो जाए तो ऐसा हो सकता है कि फिजिकल डेफिसिट हमारा ज़्यादा हो सकता है. तो दीज आर बिल्कुल कोर पॉलिटी की चीज़ें, आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है बीपीएससी के लिए स्पेसिफिकली. नाउ व्हाट इज़ डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स इज़ अ टाइप ऑफ इनकम पे लगता है, एंड इट इज़ अ प्रोग्रेसिव टैक्स. प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर देयर. ठीक है, एक्चुअली बात क्या है ना, ये पॉलिटी बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है, तो सिर्फ पॉइंट्स को बस पॉन्डर अराउंड हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, पॉइंट पढ़ के आगे चल गए, वो समझ में ही नहीं आएगा. थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है इसमें. आई होप ये एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट आपको ठीक लगे. प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, देन देयर इज रिग्रेसिव टैक्स. प्रोग्रेसिव टैक्स का क्या मतलब होता है? इनकम इंक्रीज होगी तो वो टैक्स भी इंक्रीज होगा.
अब इसका अगर आपका दिमाग यहाँ पे काम कर गया तो यू विल बी एबल टू से कि भैया हमारा इनकम टैक्स तो ऐसा ही टैक्स है कि जो भी ऊपर के स्लैब्स में जाता जाएगा, एज द इनकम ऑफ द पर्सन विल इंक्रीज प्रपोर्शनेटली ही विल गेट इंड्यूस्ड टू द लार्जर टैक्सेस। रिग्रेसिव टैक्स क्या है? ऑल ऑफ द पीपल इन इंडिया हैज़ टू पे द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स। अब ये ऐसा कौन सा टैक्स है, ज़रा सोच के देखो। मतलब अंबानीज भी वही उतना ही पैसा देंगे उस पर जितना एक गरीब इंसान देगा। तो बाइंग अ बिस्कुट आपने बाय किया तो उस पर जीएसटी लगा। वो जीएसटी ऐसा थोड़ी है अंबानी के लिए 1000 रुपये एंड फॉर जनरल पब्लिक इट इज़ 1 रुपीज़। वो तो सबको एक ही पैसा देना पड़ेगा। सो दीज टाइप ऑफ टैक्सेस आर रिग्रेसिव टैक्स। ओके ना, डायरेक्ट टैक्स मैंने बताया, इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द इनकम ऑफ द पर्सन। इट इज़ imposed by the Central Board of Direct Tax CBDT, and this indirect tax is imposed by the Central Bank of CBIT, indirect tax. Also corporation tax is there. जैसे income tax is applied on the income earned by the individuals, corporation tax is levied on the companies. It is also a type of direct tax. Also there is a tax known as STT, Securities Transaction Act, Securities Transaction Tax, which is imposed on the stock market. Now indirect tax में we have custom and GST. ठीक है, now customs is there on export import. अगर हम कुछ बाहर जा रहे हैं, कोई सामान लेके आ रहे हैं, तो इन सब पे जो लगता है, this is the custom duty is imposed. Now if I talk about the stamp duty, important है इसको, इसीलिए I have mentioned it. It is levied by union and it is collected and appropriated by the states. If I talk about VAT, VAT was firstly introduced in the year 2005 and Haryana was the first state to apply VAT. Service tax, if I talk about service tax, it was introduced in the year 1994 by Raja J. Chelia Committee. Now, Finance Commission, if I talk about Finance Commission, Article 280 is related to Finance Commission. Finance Commission is appointed by the President and Arvind Pangaria is current Finance Commission का head. 16th Finance Commission की मैं बात कर रहा हूँ. The Finance Commission is targeted with the responsibility of tax devolution states के. Okay, and President tells the Finance Commission about the order of reference, जिन सब पे Finance Commission has to decide and कि किसको कितना पैसा मिलने वाला है. ओके, 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो NK सिंह थे एंड ही टोल्ड 42% ऑफ टैक्स डिवोल्यूशन टू द स्टेट. सॉरी 41% बोला था उन्होंने. 1% वॉज देयर फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. ओके, नाउ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख से फाइनल पॉइंट सुन लो, उसके बाद वीडियो एंड करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी. जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में ये कंफ्यूज मत करना कि लद्दाख इज़ नॉट द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी. फर्स्ट ऑफ ऑल जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन बिल इन 2019 जम्मू एंड कश्मीर इज़ द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी. ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है. आप लद्दाख टिक करके आओगे बट आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में फाइनल लेक्चर होगा हमारा इकोनॉमी का. हम प्लानिंग करेंगे एंड मिसलेनियस रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स. आई विल आल्सो टेल यू अबाउट द कैपिटल मार्केट. ठीक है, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इससे क्वेश्चन आता है. देन वी विल टॉक अबाउट पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एटसेट्रा. कुछ मैं इंडेक्स के बारे में बता दूंगा आपको. ठीक है, विद दिस लेट अस एंड दिस वीडियो हियर. कमेंट सेक्शन में मुझे बताना वीडियो कैसी लगी. लास्ट पार्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा, एक आध दिन में आ जाएगा. 1 to 2 days फाइनल पार्ट इसका आ जाएगा. तो इसी के साथ जो प्रॉमिस किया था मैंने, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, उसके बाद में साइंस, इकोनॉमी, ये सारा मैंने कवर ठीक ठाक कर दिया है आपका. ओके, कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी वीडियो. डू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप स्टडिंग.